मैं ध्वनि राज्य गुरु आज के सॉरी एक्चुअली आई एम न्यू तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं ध्वनि राज्य गुरु इस हिंदी दिवस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा हिंदुस्तान है। 14 सितंबर यानी कल का दिन जो हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है हर एक वर्ष, क्योंकि 14 सितंबर 1949 यह दिन इसलिए मना जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसी दिन संविधान सभा ने यह निर्णय किया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। और भारत में क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है, इसीलिए हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। और आइए इससे ज्यादा इतिहास को हम जानते हैं जिल बारण के माध्यम से। Good morning, everyone. On Hindi Divas, we will start with a quote by Dr. Rajendra Prasad. A country that does not take pride in its language and literature can never progress. The image you can see is of Bihor Rajendra Singha, whose context we will get in further slides. In India, India celebrates Hindi Divas, Hindi Day, on September 14 every year to commemorate the adoption of Hindi in the Devanagari script as one of the official languages of the nation and to spread awareness about the importance of the Hindi language in the country. One of the reasons behind celebrating this day is to prevent the increasing trend of the English language in the nation and the neglect of Hindi. The day is a celebration of the Hindi language and its cultural heritage and values among the people of the country and abroad. Various Hindi literary festivals, poetry sessions, essay writing competitions, and speech contests are organized around the nation and beyond to celebrate Hindi Divas. A language is not just a tool for communication, but it also ties people together. For Hindi, its various dialects like Braj, Khari Boli, Bundeli, Audi, Bengali acts as knot. It is to be noted that Mahatma Gandhi old called Hindi the language of the masses. The father of the nation pointed about making Hindi the national language of the nation. Talking about the history of the Hindi Divas and Hindi language. The history of Hindi belongs to the Indo-Aryan division of the Indo-European language family. Mughals and Persians added their own flavor to the Hindi language. We all know that hundreds of languages and dialects are spoken in India. After independence, the biggest question that arose in the country was about the language. After India gained independence, a need for an official language was felt to streamline communication between the government departments and to reach out to the public. The Constituent Assembly then expected Hindi as an official language of India on September 14, 1949. The first Hindi Divas was celebrated in 1953. Hindi was adopted as one of the official languages under Article 343 of the Indian Constitution. In all, there are 22 scheduled languages of India. Hindi was adopted as one of the two official languages of the Republic of India by Constituent Assembly of India. Other was English. Due to the efforts of Behor Rajendra Singha, along with Hazari Prasad Dwivedi, Kaka Kalelkar, Maithili Sharan Gupt, and Shetty Govind Das,
As such, on the 50th birthday of the Rajendra Singha, on the 14th September of 1949, the efforts resulted in the adoption of an Hindi as an official language. This decision was ratified by the Constitution of India that came into effect on the 26th January 1950. Apart from India, the Hindi language is also spoken in the several other countries like Nepal, Guyana, Trinidad and Tobago, Suriname, Fiji, and Mauritius. After independence, the government of India set a goal to give an idealized look to the mother tongue of the country and set a target of grammar and orthography using the Devanagari script to bring the standardization is in writing. The significance of Hindi and Hindi Divas are the idea behind dedicating a day to promote Hindi in itself suggests that the language has not achieved in its full potential. For a language to get wider acceptance and thrive, it has to become a language of the masses and not remain confined to the cultural events. While literary and cultural events in support of Hindi should be welcomed, there is a need to take these events to the public, possibly by taking advantage of technology. On this day, many organizations give awards to writers, poets, and cultural activists who have contributed to enriching the language. Schools and colleges organize quiz competitions too. In order to promote Hindi, it is advised to use Hindi in all government offices. Many literary and cultural events are organized on this day. Rajbhasha Kirti Puraskar and Rajbhasha Gaurav Puraskar awards are also given to ministry, department, public sector units, nationalized banks, and citizens of Hindi Divas for their contribution and promotion of Hindi. There are some facts about the Hindi language. Hindi is the most spoken language in India. More than 70% of the people of the country speak and understand Hindi. Hindi got its name from the Persian word Hind, meaning land of Indus River. In 1918, in Hindi Sahitya Sammelan, Mahatma Gandhi for the first time talked about making the Hindi language a national language. Gandhiji also called Hindi the language of the public. In 1977, Atal Bihari Vajpayee, the first External Affairs Minister, addressed the United Nations General Assembly for the first time in Hindi. Every year, on 14th September to 21st September, Rajbhasha Week or Hindi Week is celebrated on the occasion of Hindi Divas. In year 1881, Bihar replaced Urdu with Hindi as its sole official state language and thus became the first Indian state to adopt Hindi. Letters of the Hindi alphabet have own independent and distinct sound. Hindi script is phonetic, which is why words are pronounced exactly as they are written. First Hindi poem was written by the eminent poet Amir Khusro. The first literature of the history of the Hindi language was composed by the French writer Grasim de Taisy. The word namaste is the most commonly used word in Hindi language. English words including avatar, bungalow, guru, jungle, khaki, karma, loot, mantra, sorbet, pajamas, shampoo, typhoon, and yoga are borrowed from Hindi. The first web portal of Hindi came into existence in 2000. Since then, Hindi started making its mark on the internet, which has now gained momentum. The first Hindi typewriters were made in 1930s. Hindi is one of the seven languages in India that is used to create web address, that is URL. Bhasha Samman Award has been started on Hindi Divas to inspire people towards Hindi as well as other languages. This honor is given annually to special writers for the significant contribution to Indian languages and also for the contribution to classical and medieval literature. Thank you.
Thank you very much, Ji, for such a beautiful presentation on history of Hindi. कितना ज्यादा महत्व है हिंदी का। ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे हिंदी के बिना हिंदुस्तान होना असंभव है या हिंदुस्तान को बांधती है। कभी गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा कहा है, तो इसी हिंदी खड़ी बोली को अमीर खुसरो ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनाया है। हिंदी को हजारों लेखकों ने अपनी कर्मभूमि भी बताया है और कई स्वतंत्र सेनानियों ने इसे देश की शान भी बताया है। कितना बड़ा महत्व है हिंदी का। तो इसी हिंदी की एक कविता लेकर आ रहे हैं अमिशा रवानी। Hello, good afternoon to everyone. I am presenting here a Hindi word by Gulzar. He has used so many words from the Urdu. Uh, रूह देखी है, कभी रूह को महसूस किया है, झांकते जीते हुए दुधिया पहरों से लिपटकर सांस लेते हुए चेहरों को महसूस किया है, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हो टलिया, चुपकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं। 14वीं रात के बरखाब से हम चांद को जब ढेर से साये पकड़ के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। जिस्म 100 बार जले फिर भी वही मिट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है, रूह को कभी महसूस किया है। थैंक यू। Thank you very much, Anusha. How can we forget Prem Chand, Mahadevi Verma, Methili Sharan Gupta, Kamleshwar, Harivansh Rai Bachchan on this day? I remember one famous poem of Harivansh Rai Bachchan. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, फिर न असफलता है, इसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So this type of poem again is representing by Khushbu. Good afternoon, everyone. As Dhwani rightly said, I am going to recite the same poem. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. But actually, let me correct this poem. कई लोग इस रचना को हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित मानते हैं, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह रचना सोहनलाल द्विवेदी जी की है. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. थैंक यू. धन्यवाद। इस बात का हमें अब पता चला कि ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब की जो अगली प्रस्तुति है वो नेहा अग्रवाल, जो रीजनल लिटरेचर प्रस्तुत करेंगे।
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खास दिवस पे हम हरिवंश राय बच्चन जी को याद करे बिना कैसे रह सकते हैं। तो मैं उसकी एक मशहूर कविता यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई तो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, है उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी उसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फिर फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई तो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई तो बात गई। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाले हैं, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है कब चिल्लाता है। जो बीत गई तो बात गई। थैंक यू। धन्यवाद। जो बीत गई सो बात गई। और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह माँ के पेट से ही भाषा सीख के नहीं आता। उसे भाषा का पहला शब्द अपने माता पिता के मधुर वचनों से प्राप्त होता है। हालांकि ये भी जाना जाता है हम गुजराती है, हमारी मातृभाषा गुजराती है और ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग मातृभाषा है, लेकिन 75% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तो यह हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, मैंने पहले बताया इस तरह। तो अब की जो प्रस्तुति है वो अदिति वाला की है। मैं आह्वान देती हूँ उन्हें कि वो यहाँ आए और अपनी प्रस्तुति रजू करें। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हिंदी दिन के खास मौके पर मैं हिंदी भाषा के नामांकित कवि श्री रामधरी सिंह दिनकर की कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और कविता का शीर्षक है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी रात सुध बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पवन इठलाती है। दोहरा समय के रथ का धड़धड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, झाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोलकर डर कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तो ठीक, मगर आखिर इस पर जन्नत क्या है प्रश्न गुड जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के। जंतर मंतर सीमित को 4 खिलौने में, लेकिन होता है भूगोल बवंडर उठते हैं। जनता जब गोपाल पुल को फुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का धड़धड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुकारों के महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह इधर जाती है कल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्दों का अंधकार, बीता गवा अंबर के दहते जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता है स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़े रहे। देवता मिले खेतों में खलिहानों में,
फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दुरस्ता सोने से श्रृंगार सहजाती है, दोहरा समय के रथ का धरकर नाग सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। प्यार मोहब्बत भरा है जिससे, जिससे जुड़ी हर आशा है, मिस्री से भी मीठी है जो, जी हाँ, वो हमारी हिंदी भाषा है। तो अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं दिव्या सेठा। अ, नमस्कार मित्रों। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। नमस्कार। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, यस, यू आर ऑडिबल। ओके। पहले मैं अपने मोबाइल का चित्रपट आप सबके समक्ष रजू करना चाहूंगी। हाँ। हिंदी दिवस की आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। श्री अमिताभ बच्चन, हम जानते हैं कि वे प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार श्री हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। उन्होंने कल ही फेसबुक और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की थी हम सबके साथ। और इसके उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये किसने लिखी है, तो ये मैं पढ़ना चाहूंगी। मेरे पिता हिंदी ग्रंथ अकादमी में काम करते थे और हिंदी में कविताएं कहानियां लिखते थे। हमारे घर में हिंदी में जीवन जिया जाता था। मूंग की हींग वाली दाल के साथ करारी रोटी खाते हुए पापा हिंदी में कहते थे, छाया कमाल की दाल बनाई है, प्याज देना। माँ हिंदी में प्याज काट लिया करती थी। छोटी सी बिलियां में घी में तैरती मिर्चें भी हिंदी में ही तली जाती थी। ये वो दिन थे जब मैं दीवार पे हिंदी में चिड़िया बना के भाग के बाहर देखती थी कि मेरे दूर होने पे चिड़िया उड़ अमरूद के पेड़ पे आके बैठ पाई है कि नहीं। हमारे घर के सामने त से एक तालाब हुआ करता था, जहाँ हिंदी में प से पानी भरता था। मछलियां भी हिंदी में ही तैरती थी। हम तालाब के किनारे पापा के साथ जाते थे और हिंदी में दृश्य देखते थे। वे से बहुत सुंदर दिन हुआ करते थे। हिंदी में सूरज उगता था और हिंदी में ही बहुत आसानी से ढल जाता था। हम हिंदी में बिना हाफे कितनी भी ऊंची चढ़ाई क्यों ना चढ़ जाए थे। ये वो दिन थे जब आम बोला चाली की हिंदी में किंकर्तव्य विमूढ़ बोला जाता था और हिंदी में ही समझ भी लिया जाता था। मैंने अपना तमाम जीवन हिंदी में ही जिया है और बचा हुआ भी हिंदी में ही जीऊंगी। दीवार पे जो चिड़िया मैंने हिंदी में बनाई थी, एक दिन वो उड़ जाएगी, पर ह से हवा में, म से मेरे लिए मेरे लिखे हुए, म से मेरे लिखे हुए, प से पन्ने हमेशा रहेंगे। ब से ब्रह्मांड में मेरी हिंदी एच से नहीं ह से रहेगी, अ से अनंत तक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो प्रस्तुति है वो लता बारैया। हेलो एवरीवन। आज आप सभी के बीच मैं प्रदीप चौबे की एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। गजल का शीर्षक है हर तरफ गोलमाल है साहब। आपका क्या ख्याल है साहब,
कल का कल का भगवा चुनाव जीता तो आज भगवत दयाल है साहब। लोग मरते रहे तो अच्छा है, अपनी लड़की की टाल है साहब। आपसे भी अधिक फले फूले, देश की क्या मजाल है साहब। मुल्क मरता नहीं तो क्या करता, आपकी देखभाल है साहब। रिश्वतें खा के जी रहे हैं लोग, रोटियों का अकाल है साहब। जिस्म बिकते हैं, रूह बिकती है, जिंदगी का सवाल है साहब। आदमी अपनी रोटियों के लिए आदमी का दलाल है साहब। इसको डेंगू उसे चिकनगुनिया, घर मेरा अस्पताल है साहब। तो समझिए पात पात हूँ मैं, वे अगर डाल डाल है साहब। गाल चाटे से लाल था अपना, लोग समझे गुलाल है साहब। मौत आई तो जिंदगी ने कहा, आपका ट्रंक काल है साहब। मर जाता है जी जाता है, आदमी का कमाल है साहब। इस अधूरी गजल हुई पूरी, अब तबीयत बहाल है साहब। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद लता दीदी। हर एक वर्ष हिंदी भाषा हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हर एक वर्ष पर इसीलिए हिंदी दिन मनाया जाता है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और इसी उद्देश्य के साथ कि सभी सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग करने को कहा जाता है। साथ में लोगों को प्रेरित करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी भाषा अवार्ड भी दिया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रपति उन सभी लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के किसी क्षेत्र में अपना कार्य किया हो। जैसे कि जिल ने हमें बताया क्यों हिंदी दिन मनाया जाता है। अगली जो प्रस्तुति है वो हिनाबा सरवैया प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं आज आपके सामने मेरी रची हुई काव्य का पठन करूंगी। काव्य का शीर्षक है जंजीरों से आजादी। जीवन बिताया तकरारों के साथ, जीवन बिताया तकरारों के साथ, भविष्य देखा उज्ज्वलों के साथ। विदा किया उम्मीदों के साथ, विदा किया उम्मीदों के साथ, साथ निभाना मिला न साथ। जिंदगी में आया बड़ा अंधेरा, जिंदगी में आया बड़ा अंधेरा, आँख खोले ना मिला सवेरा। हाथों की चुड़िया आँखों की चमक, हाथों की चुड़िया आँखों की चमक, पैरों की नुपुर आवाजों की चहल। आई धुंधली कश्ती मेरी, आई धुंधली कश्ती मेरी, बिना हाथ ना पहरी आजादी, बिना हाथ ना पहरी आजादी। रूह मेरी तड़पी, रूह मेरी तड़पी, बरसाई नहीं नहीं, हर का जल में छुपा गहरा समंदर। पंख फुटने की बारी आई, पंख फुटने की बारी आई, बिना घोंसला के उड़ न पाई, बिना घोंसला के उड़ न पाई। खबर। अत्यंत सुंदर प्रस्तुति, सुंदर शब्द। हिंदी भाषा, जैसे हम अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आज हिंदी दिन, कल ही था हिंदी दिन, लेकिन आज हम ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हिंदी का जो साहित्य समुद्र है उसमें भी हम डुबकी लगाए। और अगली जो प्रस्तुति है वो हिमांशी अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। हिमांशी। Hello everyone. As we celebrating here Hindi Day, so I want to perform one of my Hindi poetry. The title of the poem is Shakti and the words are: कर खुदी को बुलंद इतना कि अंबर भी झुक जाए, समय भी ठहर के दो पल तुझे देखने को रुक जाए। अपने ज़मीर को कर मजबूत इतना कि तू अनमोल बन जाए, खुदा खुद तुझे खरीदने बैठे और खुद को ही कमजोर पाए। तू आंधी है, तूफान है, तू खुद में रेगिस्तान है, तू जग में ढूंढ रहा है क्या, तेरे अंदर ही भगवान है। रूठी है किस्मत तो मनाने का भी रख हौसला, मुड़ जाएगी लकीरें हाथ की जब तू लेगा कोई फैसला। संभाल उसे जो क्षण क्षण में बदल रहा है मन तेरा,
संभाल उसे जो क्षण क्षण में बदल रहा है मन तेरा। माना कि जग में भरा पड़ा है घनघोर अंधेरा, पर तू वो आरती की लौ कहाँ जो है पत्थरों को पूजती। तू वो मशाल की ज्वाला है जो अंधेरों से है जूझती। तू वो मशाल की ज्वाला है जो अंधेरों से है जूझती। थैंक यू। Beautifully recitated poem. हिंदी भाषा पर तुम भी बड़ा इतराओगे, हिंदी भाषा पर तुम भी बड़ा इतराओगे, जिस दिन इसकी ताकत तुम खुद समझ जाओगे। अपनाओगे हिंदी हिंदी की सुरीली वाणी को, जब तुम हिंदी के एक कदम और नजदीक जाओगे। ये मेरी रची हुई कविता है, कोशिश की है। तो अगली जो प्रस्तुति है वो दया वाघानी की है, जो आज कुछ नया हमारे साथ शेयर करेंगे। Thank you, Dhwani, and thank you, everyone. Today I'm going to play one interesting game, Kahoot. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। And as I have informed you in advance that you have to install one app named Kahoot. So you all are ready, guys. Yes? Online students also have to join this game. So I am generating my screen and let me share my screen for that. Please open your app in your mobile. If you haven't installed yet, so you can easily go through the Google Chrome and type kahoot.com. I have also shared that link in WhatsApp group. I am generating my screen. Yes, screen is generating soon. Loading game pin. Yes, please type this pin in your app, and from this you will enter into the game. Waiting for the teams. You have to give your nickname. If you face any problem in joining, please ask us or seniors. Khushbu has joined soon. Yes, we are waiting for all of you guys. Aditi Wala also has joined. Ruvita, Jill, they are getting more names. Bunny. Yes, Lata has also joined. Ishan. Sairasgiri. Neil also joined. Ashwin, Manish.
Inaba, Bobyan. Yes, we have 15 participants now. Okay. Neha, Divya, 18 participants we have. Chandni Pandya, Pina, Nipa. Come on, guys. Please speak. Okay, we are going to start the game. In this screen, you will see the question and option. And from your device, you have to click on the right option. You will see 4 boxes there. You have to read the questions and option from the screen and give answer from your device. Okay. So let us start with the first question. You all are ready? Okay. Okay, Hindi Day 2021. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? यू हैव टू वेरी क्विक इन रीडिंग। ओके, फर्स्ट इज 244, 243, 343 और 344। You will get 20 seconds in each question to give your answer, and those who will give fast answer will get more score. So be quick in give your answer. Yes, time is over, and the right answer is 344, and 14 of you got right answer. Let us see who is in the first position. Chandni Pandya is in the first position, and Sneha Jil Pyar next to them. Her next question. भारत के सर्वाधिक लोगों अनुसार कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, तमिल, गुजराती और हिंदी। बंगाली, तमिल, गुजराती और हिंदी। Be quick, guys, to give your answer. Don't talk English, please. Okay, 19 of you have got right answer, and that is Hindi. Let us see who is in the first position. Chandni Pandya is in the first position, and Sneha and Lata are next to her. The third question is, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने व्यंजन है? 11 स्वर व 33 व्यंजन, and 9 स्वर व 21 व्यंजन, 33 स्वर व 49 व्यंजन और 5 स्वर व 11 व्यंजन। Okay, so the right answer is 9 of you got right answer. That is 11 swar and that is Vyanjan. Let us see who is in the first position. Chandni Pandya. Oh, Jil is in the first position, and Neela and Amisha are next to her. The fourth question. संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन कब दिया गया? 1977, 1970, 1966 or 1950? Seven of you got right answer. That is 1977. Let us see the position. Jil is remaining the same, and Sneha and Chandni climbed up. Fifth question. भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है?
सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और मैथिली शरण गुप्त। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और मैथिली शरण गुप्त। Okay. Maithili Sharan Gupta is right answer and 8 of you got it right. The position is remain the same. Sixth question is हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? Option is that मृगावती, कामायनी, पृथ्वीराज रासो and विसलदेव रासो. मृगावती, कामायनी, पृथ्वीराज रासो and विसलदेव रासो. Fifteen of you got the right answer and the answer is Prithviraj Raso. Let us see the position. Chandani again climbed up and took the first position and Sneha and Lata are following her. Seventh question is ऑस्कार पुरस्कार के लिए नामांकित की गई पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन इज दैट राजा हरिश्चंद्र, मदर इंडिया, रोटी और मेरा नाम जोकर. Be quick in giving your answer. राजा हरिश्चंद्र, मदर इंडिया, रोटी एंड मेरा नाम जोकर. 11 of you got the right answer, that is Mother India, and the position is remain the same. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि से किस साहित्यकार को संबोधित किया जा रहा है? आंसर सॉरी ऑप्शन इज दैट जयशंकर प्रसाद, यशपाल, प्रेमचंद एंड सच्चिदानंद. जयशंकर प्रसाद, यशपाल, प्रेमचंद एंड सच्चिदानंद. And 14 of you got the right answer and that is Premchand. Chandani remains the same. And the second last question is देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन इज दैट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार. And the right answer is Bihar, and 8 of you got the right answer. There is the position change in position. Aditi and Jill are climbing up. And the last question. संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया? And options are मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज. मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज. And the right answer is Atal Bihari Vajpayee, and 15 of you got the right answer. Now let us see the result of the quiz. Third, Jill is the third. Congratulations to her. Aditi Wala, who stood second, and first is
चांदनी पंजा। Congratulations to all participants and all the 3 winners. Thank you everyone. Thank you so much, Riddhi, for such a unique game and congratulations to all the winners. अंत में सिर्फ इतना कह के मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करूंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भ्राता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से है संस्कृति हमारी, संस्कृत से है संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। मैं बारट सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए। बहुत अच्छी प्रस्तुति सब लोगों ने प्रेजेंट की। आज के दिन का जो एक मुहावरा हमें रखना है वो है कि हम हिंदी भाषा में ही बात करें और सब प्रस्तुति हिंदी भाषा में की जाए तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और हम ये महसूस करते हैं कि किसी एक भाषा में बोलना हमारे लिए कितना कठिन है। हम ज्यादातर 3 भाषा में सोचते भी है और बोलते भी है, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। और अगर हमें जैसे कहा जाए कि कंपलसरी है, देखिए फिर से अंग्रेजी शब्द आ रहा है। अगर फर्जियात रूप से हमें अंग्रेजी में या हिंदी में या गुजराती में किसी एक भाषा में ही बोलने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल पैदा होती है। वो अच्छी बात बुरी बात उसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी है, बहुभाषा की हमारी पहचान है। तो इसलिए एक भाषा में बोलना बहुत कठिन और मुश्किल होता है। लेकिन आज के दिन ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम ज्यादातर हिंदी भाषा का शब्द प्रयोग करें और सभी प्रस्तुति और प्रस्तुति के बीच में अनाउंसमेंट वगैरह भी, फिर से अनाउंसमेंट अंग्रेजी शब्द आ गया, वो भी हम हिंदी भाषा में ही करें तो अच्छा रहेगा। कुछ चीजें मुझे दिखानी है इसलिए मैं यहाँ से पहले वो शेयर करके दिखाता हूँ आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स नहीं, इसके बाद मैं वर्गखंड में आकर आपसे थोड़ी बात करूंगा। पहली बात, एक इतिहास का हमने देखा कि हिंदी भाषा का इतिहास कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से हिंदी भाषा एक राजभाषा बनी है। तो ये एक महत्व की बात है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हमारे भारत देश में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषाएं बहुत सारी है और बहुत सारी राजभाषाओं में एक राजभाषा हिंदी भी है। बहुत लोगों को ये बेचैनी भी होती है कि इतना बड़ा मुल्क है हमारा, इतना बड़ा देश है हमारा और हमारे पास एक राष्ट्रभाषा नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है हमारे पास अनगिनत राष्ट्रभाषाएं हैं, हमारे पास एक नहीं अनेक भाषाएं हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक नहीं अनेक राष्ट्रभाषाएं हैं जिनको हम राजभाषा के नाम से पहचानते हैं। हिंदी शब्द का जो इटिमोलॉजी है, उसका इटिमोलॉजी का हिंदी ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। उनकी जो शब्द कहाँ से आता है, तो ज्यादातर लोग आज ये समझते हैं कि हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू ये एक है। जैसे हिंदू एक धार्मिक आइडेंटिटी, पहचान बन जाती है। इसलिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो उन लोगों की भाषा हिंदी है और उनका हिंदुस्तान है। इस तरह से एक पहचान बन रही है जो कि गलत पहचान है। हिंदी शब्द पर्शियन भाषा से आया है और सिंधु, जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन, सिंधु खिरनी संस्कृति जिसको हम कहते हैं, तो सिंधु नदी जो थी जम्मू कश्मीर के आसपास, आज वो जगह पाकिस्तान में है, उस जगह के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को इस नदी के उस पार से आने वाले लोग, जैसे पर्शिया, अरेबिक वर्ल्ड या पश्चिमी दुनिया से आने वाले लोग कहते थे कि इस नदी के पार रहने वाले लोग सिंधु है।
तो सिंधु से अपभ्रंश होता होता हिंदू बन गया है वो शब्द। तो उसकी जो व्युक्ति है वो अभी भी पर्शियन भाषा से आती है, और धार्मिक जुड़ाव जो उनके साथ है वो ठीक नहीं है, वो मतलब सही जुड़ाव नहीं है, लेकिन आजकल उस तरह से उसको देखा जाता है। आज के समय में जब हम भाषा का मूल्यांकन करते हैं कौन सी भाषा, तो हम जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो कितने लोग बोलते हैं समझते हैं, तो तीसरी बड़ी भाषा के नाम में पहचानी जाती है। पहली चाइना की मैंड्रीन भाषा, अंग्रेजी भाषा, और तीसरे नंबर पे बहुत सारे लोग अलग अलग सर्वे में हिंदी भाषा को रखते हैं कि जो भाषा बोली जाती है लोग समझ सकते हैं, उस भाषा में थोड़ी बहुत बातचीत भी, कम्युनिकेशंस इसमें हो सकती है, तो वहां पर ये रखी जाती है। लेकिन हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, इस युग में कोई भी भाषा का महत्व कैसा है वो नापने के लिए डिजिटल प्रेजेंस ऑफ लैंग्वेज कैसी है ये देखना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट के माध्यम पे कौन सी भाषा और भाषा का स्थान कैसा है, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा देखी जाती है, मानी जाती है। ये तो अगर हम ये विकिपीडिया का एक पेज अगर देखें और हाँ, ये पेज अगर हम देखें जहां पर लैंग्वेजेस यूज्ड ऑन द इंटरनेट, इस पेज का मैं हिंदी भी ढूंढ रहा था लेकिन थोड़ी देर लगी, मुझे हिंदी के इतिहास या हिंदी दिवस का हिंदी पेज मिल गया विकिपीडिया पे, जहां से बातें लेकर हम प्रेजेंट कर भी सकते हैं, जो कि यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हो। तो विकिपीडिया का हिंदी पेज है जो शुरू होता है hi.wikipedia.org, not .com, hi.wikipedia.org। कभी कभी इस पेज की मुलाकात लेते रहिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है डिजिटल युग में कि हिंदी हो या गुजराती का जो पेज है विकिपीडिया के पेजेस है उनकी मुलाकात भी हम ले सकते हैं। हिंदी दिवस का इतिहास पर भी एक पन्ना है यहाँ पर, ये ढूंढने में थोड़ी देर लगी इसलिए मैं अंग्रेजी का ये पन्ना आपको दिखा रहा हूँ, लैंग्वेजेस यूज्ड ऑन इंटरनेट। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा करीबन 60% है, फिर रशियन, टर्किश, अब देखिए टर्की तो बहुत छोटा सा कंट्री है, फिर भी स्पेनिश, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, वियतनामीज, चाइनीज, अरेबिक, पोर्टुगीज, ग्रीक, इटालियन, इंडोनेशियन, यूक्रेनियन, पोलिश। अब नीचे आते जाइए, अब आपको भारतीय भाषा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। 32वें नंबर पे आपको हिंदी मिलेगी, 0.01%। 32वें नंबर पे आपको भारत की पहली भाषा मिलती है, जो इतने सारे बोलने वाले होने के बावजूद, इतने सारे, इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग भारत के, फिर भी ऑन इंटरनेट हमारी प्रेजेंस बहुत कम है। इंटरनेट यूजर्स जो है, जो भाषा का उपयोग करने, उसमें भी इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश टॉप पे रहती है, इंडियन लैंग्वेज बहुत दिखाई नहीं देती है। विकिपीडिया के पेजेस जो है, जो व्यू होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हिंदी का पेज आप व्यू कीजिए, क्योंकि कोई है जो उसका मूल्यांकन करता है कि कहाँ से लोग आते हैं और कौन सा विकिपीडिया का पेज लोग देखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि आप भी ज्यादातर अंग्रेजी का पेज ही देखते होंगे, वेरी रेयरली, कभी कभार हम हिंदी या गुजराती या संस्कृत विकिपीडिया भी अब तो डेवलप हो रहा है, वहां पर जाते हैं। तो अंग्रेजी का सबसे ज्यादा जापानीज विकिपीडिया पेज ज्यादा दिखा जाता है, वहां पर भी आपको अभी हमारी भाषाएं नहीं मिल रही है। ये कहते हैं ना, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इसलिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे देखें इनको, थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो भी देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा ब्लू कलर में है, दिस इज पेज व्यूड ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, वो भी दिखाता है कि बहुत ज्यादा है अन्य भाषाओं की तुलना में भी। फिर ये ग्राफिक है विकिपीडिया पेज ओवर टाइम, समय में किस तरह से पेज को देखा गया है लोगों के द्वारा।
ये पेज जो ग्राफिक आपके सामने है, जो इन्फोग्राफिक आपके सामने है, इन्फोग्राफिक मैं फिर से स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, क्योंकि हम बहुत बार आपको बताएंगे कि जब आप कुछ लिखे, आपके प्रश्न पत्र के जवाब भी जब लिखे, तो अगर आप इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल कर सके तो काफी असरकारक रहता है। तो ये एडिटर्स, विकिपीडिया के एडिटर्स जो होते हैं भाषा के, उसमें भी अंग्रेजी ज्यादा है। आप देखते हैं कि कुछ समय के लिए ये जो नीला रंग है, ये ग्रीन कलर जो है वो डीई मतलब जर्मन भाषा का है। जर्मन भाषा थोड़े समय के लिए बहुत जोर में आई, फिर मॉडरेट हो गई, और अंग्रेजी भाषा काफी जोरों पे है, और भारतीय भाषा के एडिटर्स भी विकिपीडिया पे बहुत कम है, जिसकी नोंद इस टेबल्स नहीं ले रहा है। ये जो पेज, ये जो आप चार्ट देखते हैं वर्ल्ड मैप, वो है मोस्ट पॉपुलर एडिशन ऑफ विकिपीडिया बाय कंट्री। तो आप भारत का नक्शा अगर देखते हैं तो वहां पर आपको जो रंग मिलता है, करीबन लाल रंग, वो लाल रंग अंग्रेजी भाषा का है। इसका मतलब कि इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर विकिपीडिया का कोई पेज है तो वो है अंग्रेजी का। तो उसी हिसाब से अगर आप ये येलो कलर देखें, पीला रंग देखें, तो ये स्पेनिश भाषा का है। स्पेन हम जानते हैं कि छोटा सा कंट्री है, यूरोप में एकदम छोटा सा जो है वो स्पेन कंट्री है, लेकिन आप यहाँ पर आकर देखते हैं जो लैटिन अमेरिका है या मैक्सिको है, अमेरिका के नीचे, आप सब ने ज्योग्राफी पढ़ी होंगी, इसलिए आपको पता है कि अमेरिका कहाँ है, मैक्सिको कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, ये आपको पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी स्कूल में पढ़कर आए हैं। तो मुझे पता है आप मुस्कुराते भी होंगे कि क्या स्कूल में पढ़ा, कितना याद रहा, कितना याद नहीं रहा। तो लेकिन ये जो नीला रंग, बहुत ज्यादा पीला रंग दिखाई दे रहा है, वो स्पेन की कॉलोनी थी, जैसे भारत ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो ये सब यूरोप के कंट्रीज ने पूरे देश पर कब्जा, पूरी दुनिया पर कब्जा जमाया था कॉलोनियलिज्म में। तो आज भी वहां पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है, इसलिए स्पेन छोटा कंट्री है, फिर भी स्पेनिश भाषा बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। मैक्सिको और साउथ अमेरिका, जहां पर भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर आप ये रशिया देख रहे हैं, जहां पर ब्लू रंग, लाइट ब्लू रंग है रशिया में, तो RU ये है। चाइना में आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, छोटा प्रोजेक्टर पे शायद कलर अच्छे दिखते होंगे, जो मुझे दिखते हैं वही आते होंगे। चाइना में आप देखते हैं कि ZH का मतलब है मैंड्रीन, चाइनीज भाषा का है वहां पर। फिर आप मुस्लिम कंट्रीज देखें, अरेबिक वर्ल्ड, तो वहां थोड़ा ब्लू रंग ही है, रशियन जैसा ही ब्लू रंग है, लेकिन थोड़ा अलग शेड आपको दिखता है, वो अरेबिक लैंग्वेज का है, अरेबिक लैंग्वेज। फिर डार्क ब्लू कलर जो दिखता है, डार्क ब्लू आपको अफ्रीका में ज्यादा दिखता है। अफ्रीका में वो जो रंग है वो फ्रेंच भाषा का है। फ्रेंच भी छोटा देश है, यूरोपियन कंट्री, ऊपर भी आपको थोड़ा ब्लू दिखेगा, ब्लैक और येलो के बीच में आपको ब्लू दिखता होगा। वो फ्रेंच कंट्री है और उनकी कॉलोनी हुआ करती थी ज्यादातर अफ्रीका। हमारे जो क्लीमेंट है रिसर्च स्कॉलर जो अफ्रीका से आए हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एकेडमिक कोर्स किया वहां पर उनके वीडियो भी देखे होंगे। तो क्लीमेंट जो है वो अफ्रीका के बुरुंडी नाम के कंट्री से आते हैं। वो कंट्री फ्रेंच की कॉलोनी थी, तो उनकी वैसे वो पहली भाषा अपनी मातृभाषा के बाद फ्रेंच बन जाती है और अंग्रेजी तीसरी भाषा उनके लिए बनती है, तो फ्रेंच कॉलोनी। तो ये विकिपीडिया के पेजेस हैं, कहाँ पर कैसे पॉपुलर है, और उसमें आज भी आप कॉलोनियलिज्म की छांट देख रहे हैं। कॉलोनियलिज्म अभी भी आपको बहुत हद तक दिखाई देता है। अगर भारत में अगर आप हमें चाहिए कि यहाँ पर हिंदी, गुजराती, संस्कृत के विकिपीडिया पेज पॉपुलर हो, तो हमें 2-3 काम करने होंगे। एक ये कि वी ऑल हैव टू बिकम, फिर से अंग्रेजी भाषा आ जाती है, हमें सबसे पहले हमें बनना होगा विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म के एडिटर्स, वहां के एडिटर। तो उसमें फ्री है, आप लॉग इन कीजिए और कोई भी पेज आप एडिट कर सकते हैं। संस्कृत के बहुत सारे अध्यापक इस मुहिम से जुड़े हैं और बहुत सारे पेजेस संस्कृत भाषा के विकिपीडिया पे वो लाद रहे हैं वहां पर।
और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आप लोग अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसी तरह से अगर इस मॉडल पे हमारे भारत के जितने भी पीजी डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी के, वहां जहां पर हमारी रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, मलयाली, तेलुगु, बांग्ला, बहुत सारी हमारी भाषाएं, उनके स्टूडेंट्स भी अगर आप सब की तरह ब्लॉग लिखना शुरू कर दे तो आप सबके 2 साल में करीबन 100 से 200 ब्लॉग बन जाते हैं। 2 साल आप पढ़ते हैं तो यहाँ के पढ़ाई के दौरान, तो आप सोचिए कि उतनी रीजनल लैंग्वेजेस में ब्लॉग बनेंगे तो कितनी भाषा इंटरनेट पे जाएगी। भारत की बहुत सारी भाषाएं वहां जा सकती है। हम अंग्रेजी से डील करते हैं, हम आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप अंग्रेजी में ब्लॉग लिखिए, लेकिन कभी कभार अगर आप हिंदी साहित्य या गुजराती साहित्य पढ़े तो आपके अंग्रेजी ब्लॉग के साथ साथ आप उसमें गुजराती, हिंदी, संस्कृत भी जोड़ते जाइए, ताकि वो भाषा भी इंटरनेट में उसकी प्रेजेंस भी बढ़ती रहे। तो नए जनरेशन के लोगों से ये अपेक्षा होती है कि वो अपने डिजिटल हैबिट्स जो है, बहुत ज्यादा समय हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो उसके साथ लैंग्वेजेस का भी वो ख्याल रखे। अगर आप चैट करते हैं व्हाट्सएप में या किसी भी चैट प्लेटफॉर्म पे, और आप अगर गुजराती में चैट करनी है तो गुजराती भाषा का ही इस्तेमाल करें। हूँ आऊ छू, HU हूँ, AAVU आऊ, CHU छू એવું નહીં, પણ હું આવું છું ગુજરાતીમાં જ। અંગ્રેજી ટ્રાન્સક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરી અને ગુજરાતી ન લખવું અથવા હિન્દી ન લખવું અને એ જ ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાં એના મહાવરો એમની પ્રેક્ટિસ કરવી, that is also something that people can try to see that, because people are studying our Twitter habits, our WhatsApp habits, our chatting habits, and they are coming to such kind of conclusions। फिर से अंग्रेजी भाषा आ गई बीच में। सब लोग ये सर्वे करते हैं, देखते रहते हैं और उसके हिसाब से रिसर्च संशोधन करते हैं और उसके हिसाब से वो पत्र लिखते हैं जो देशों दुनिया में जाते भी है। तो ये एक कुछ दिखाना था आपको। और एक ये बात भी, एक आज के दिन के लिए एक जैसे पर्सनल प्रेजेंटेशन जैसा है, तो हिंदी भाषा में एक नया साहित्य का जॉनर उभर रहा है, काफी उभर भी चुका है, बहुत लोकप्रिय भी अब तो हो चुका है। सोशल मीडिया की वजह से एक नया जॉनर हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गुजराती में भी अब आया है। वो है लघु प्रेम कथा का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लप्रेक कहते हैं। लप्रेक लघु प्रेम कथाएं। तो उस जॉनर में रविश कुमार ने एक किताब लिखी है। पहले वो किताब नहीं थी, पहले वो सोशल मीडिया पोस्ट थी, और सोशल मीडिया पोस्ट बाद में किताब के रूप में आई। तो उसमें छोटी प्रेम कथाएं है, लघु प्रेम कथाएं। तो उनके एक 2 छोटे वीडियो हम देखते हैं कि ये लप्रेक है क्या, एक नया जॉनर है, वो है क्या, और उसमें किस प्रकार की कहानियां लिखी जाती हैं और उनके रूपक क्या है। बाद में जब हम चर्चा करेंगे साहित्य की तो उसके मेटाफर, उसके रूपक के बारे में हम बातें करते जाएंगे, लेकिन एक बार अगर हम देख ले तो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो ये थोड़े रूपक, नए रूपक हिंदी साहित्य से लघु प्रेम कथाएं लप्रेक से आ जाए। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं आप सबके साथ और हम ये वीडियो देखते हैं। आप वहां पर वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। तो ये जो पहला वीडियो है छोटा सा, वहां पर ये लेखक जो है रविश कुमार जर्नलिस्ट भी है और साहित्य भी लिखते हैं। तो साहित्यकार के रूप में आज हम उसका ये साहित्य कृति देखते तो वो समझा रहे हैं कि ये जॉनर क्या है, ये जॉनर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मुझे जॉनर या कैरेक्टरिस्टिक्स के हिंदी शब्द ढूंढने में थोड़ी देर लग रही है, दिमाग जो है वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, जल्दी से वो उस बात को प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, चलो थोड़ी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हमारे दिमाग में स्लोली चलती है जब हिंदी भाषा आती है तब। तो पहले वीडियो में वो ये बात करते हैं कि वो जॉनर क्या है, और दूसरे वीडियो में उसकी कुछ लघु प्रेम कथाएं वो रिसाइट करते हैं, वो सुनाते हैं, वो देखेंगे।
एक बात आपकी ठीक है कि बहुत सारे लोग जो पहली बार कहानी लिखने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, उन्हें कई बार एक भय सताता है कि क्या वो कहानी लिख पाएंगे, कहानी का फॉर्मेट क्या होता है। शायद लपरेक का कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उसमें कहानी है और वो कहानियां ही हर लपरेक को एक अलग फॉर्मेट में बदल देती हैं। लोग जब प्रेम के क्षणों में होते हैं और इस शहर के या किसी गांव के किसी हिस्से से भटक रहे होते हैं, पूरा समाज हमारे आसपास होता है, तो उस दौरान जो आप काल्पनिक वार्तालाप करते हैं और वास्तविक वार्तालाप करते हैं, वो सब कहानियों का आधार है। और भी बहुत सारे लोग उसके प्रतिक्रिया में, उसके असर में फेसबुक पर लिखने लगे। वैसी बातें वो दूसरे तरीके से कर ही रहे थे, लेकिन एक प्रेम के लिहाज से लिखना वो एक चलन सा बना है। रीडर के बारे में मैं नहीं कह सकता कि रीडर किस तरह का है। ज़्यादातर मुझे लगा कि पहली जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि उसके हिसाब से वो लोग हैं जो हिंदी से किन्हीं खास परिस्थितियों के कारण दूर हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि शायद वो गंभीर उपन्यास या बिल्कुल साहित्य के अनुशासन में लिखी गई कहानियों को पढ़ने से वो घबरा रहे थे। तो एक तरह से उन्हें एक कुशन मिला है। बहुत सारे लोग गैर हिंदी भाषी लोग हैं जो लपरेक को खरीद रहे हैं। नए लेखक को हम क्या संदेश दें, हम खुद ही अभी पुराने नहीं हुए हैं, तो ज़रूरी है कि जो पुराने लेखक हैं वो हमें कुछ संदेश दें कि जो हम लिख रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसमें वो बात है, वो रवानी है, वो रवानगी है। पर ये योजना जो थी वो सत्यानंद के दिमाग की उपज थी और बिल्कुल नई कहानियाँ थी, लेकिन किताब बन सकती है, इसे पाठकों के बीच ले जाया जा सकता है, ये उनकी सोच थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी के प्रकाशक भी नई नई चीज़ों को आजमाना चाहते हैं। वो पुरानी चीज़ों को छेड़े बिना, उनका अनादर किए बिना नई चीज़ों के साथ वो प्रयोग कर रहे हैं। इतना जोखिम दिखाया है तो प्रकाशक भी धीरे धीरे बदल रहे हैं और वो शायद अब इस चीज़ को देख रहे हैं कि फेसबुक और ट्विटर की जो दुनिया है उनसे कोई साहित्य के लिए या पठन पाठन के लिए कोई संभावना निकलती है कि नहीं निकलती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज मैं हाजिर हूँ अपनी कविता, कहानी, किस्सा इश्क में शहर होना लेकर आपके सामने। देखिए, आपके शहर में इश्क करने की जगह बहुत कम है और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी शहर प्रेमानुकूल नहीं है। तो ऐसे में कुछ कहानियों के ज़रिए कोशिश करता हूँ कि उसे लवर्स फ्रेंडली बना दिया जाए। मगध एक्सप्रेस, बोगी नंबर S1। दिल्ली से पटना लौटते वक्त उसके हाथों में बर्नॉट शॉ देखकर वहां से कट लिया। लगा कि इंग्लिश झाड़ेगी। दूसरी बोगियों में घूम घूम कर प्रेमचंद पढ़ने वाली लड़कियों को ढूंढने लगा। पटना से आते वक्त तो लड़कियों के हाथ में गृहशोभा तक दिखा था। सोचते सोचते बेचारा कर्नल रंजीत पढ़ने लगा। लफुआ लोगों का लैंग्वेज प्रॉब्लम अलग ही होता है। दिल्ली जैसा शहर तो कोई है नहीं हिंदुस्तान में। पहली बार लगा कि इतने सारे लोग कब चांद से उतर आए अंग्रेजी बोलते हुए। हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो कभी सुना नहीं। क्या हमारे मुल्क की भाषा इतनी बदल गई है? क्या ये सारे लोग हमसे इतने आगे निकल गए हैं? तो हम सोचते थे, तो ज़रूर भयभीत भी हुए और दहशत में भी आए। लेकिन फिर धीरे धीरे शहर को प्यार करना आदमी सीख लिया। प्यार करना सीख तो लिया, पर शहर में प्यार करने की जगह नहीं मिली। दोनों की मुलाकात छतरपुर के मंदिर में हुई, मगर अच्छा लगता था जामा मस्जिद में बैठना। इतिहास से साझा होने के बहाने वर्तमान का ये एकांत करीम से खाकर दोनों मस्जिद की मीनार पर जरूर चढ़ते। भीतर के संकरे रास्ते से होते हुए ऊंचाई से दिल्ली देखने का डर और हाथों को पकड़ लेने का भरोसा, स्पर्श की यही ऊर्जा दोनों को शहरी बना रही थी। चलते चलते टकराने की भी तो बहुत जगह नहीं है दिल्ली में। पता था कि दिल्ली में कोई नहीं है, लेकिन लगता था कि सारा पटना दिल्ली में उनका पीछा कर रहा है। वो इसलिए लगता था
कि उनके साथ एक लड़की है या उस लड़की के साथ एक लड़का है, तो वो से उस पीछा करने के ख्याल से, भय से भागने के लिए वो जगह बदलते हैं। और जगह बदलते हैं तो आप दिल्ली के नए नए इलाकों को देखते हैं, और फिर वही हर नया इलाका एक प्रेमी के लिए एक पर्दा है। तो उस पर्दे की तलाश में सब जाते हैं अपने इलाके को छोड़कर। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक आप इश्क नहीं करते हैं तब तक आप शहर नहीं देखते हैं। प्रेम के एक छोटे से लम्हे के लिए आप उस शहर में कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं या करती हैं, इसका हिसाब काश लोग बताता तो अच्छा होता, पर कोई बताना नहीं चाहता। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं और मैं मेट्रो सी। हाँ, जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूं। चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा, तो मैं साउथ एक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने। ये बारापुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। जरूरी नहीं कि लड़की वैसी हो, लेकिन वो उसका जो लोकेशन है साउथ एक्स, उससे जब वो गुजर रही होती है ना, तो लड़का जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा होता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, ये मेरी नहीं है, या मैं इसका नहीं हूं, या हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा है जिस पर मेरा क्लेम नहीं है। लड़की तो कह रही है कि चुप करो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं, क्योंकि साउथ एक्स वाली को वो डिफरेंस मालूम नहीं है। उसको ये अंतर नहीं मालूम है कि एक बार करावल नगर और इसमें क्या है, तो दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। लेकिन वो समझ रहा है कि सच्चाई कुछ और है, कि अभी कोई मिलेगा उसी के घर का जो कहेगा अच्छा तुम करावल नगर में रहते हो, ओह यमुना पार। नेहरू पार्क की झाड़ियों में सरसराहट से दोनों सहम गए। पत्तियों की झुरमुट से धड़कती आंखों से कोई उन्हें भकोस रहा था। दिल्ली में महफूज जगह की तलाश दो ही लोग करते हैं, जिन्हें प्रेम करना है और जिन्हें प्रेम करते हुए लोगों को देखना है। घबराहट में दोनों इतनी तेजी से उठे कि पास की झाड़ियों में भी हलचल मच गई। प्रेमियों को लगा कि पुलिस आ गई है। उसका कहा याद रहा कि कैसा शहर है, हर वक्त शरीर का पीछा करता रहता है। बड़ा शर्मनाक है कि आप दूसरों को क्यों देखते हैं, आप शरीर को ही देखने जाते हैं ना। आप उस तरह से झाड़ियों में नजर भिड़ाकर, जहाँ कोई अपनी प्राइवेसी, जैसे मैंने कहा ये शहर प्रेम अनुकूल शहर नहीं है, या हिंदुस्तान का कोई भी शहर प्रेम अनुकूल नहीं है कि जहाँ आप बैठ सकें और किसी से बात कर सकें। ऑटो शोर नहीं करता तो भीतर का एकांत महफूज नहीं होता। जो पूरा एकांत है उसके शोर की वजह से है। ऑटो शोर नहीं करता तो भीतर का एकांत महफूज नहीं न होता। स्पर्श से संवाद का अंधेरा कमरा न बनता। और ड्राइवर जमाने को कोसता हुआ बैक मिरर में देखता ऑटो न चलाता। हाँ, वो कोस भी रहा है कि आजकल के लड़के लड़कियां जी पता नहीं, वो अपने बेटे बेटियों की चिंता कर रहा है। ऐसा कम होता है जब दोनों एक जैसा सोचने लगते हैं। बोल उठा, समझ नहीं आता छूना मना है या ऑटो अंकल का पीछे देखना। सब घूर रहे हैं एक दूसरे को ना, आप कहाँ क्या लिख रही हैं, कौन हैं, किस तरह से चीजें कर रही हैं। हर कोई एक दूसरे का निगहबान बना हुआ है। अच्छा नहीं है, थोड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए सोसाइटी में, हमारा एकांत होना चाहिए। छोड़ दीजिए ना, हर बात को लेकर आप हिसाब करेंगे तो एक दिन वो डायरी भर जाएगी और फिर कोई हिसाब निकलेगा नहीं। बहुत सारी उसमें टेलीविजन चैनलों पे फलाना खाप पंचायत, फलाने ढिमकाना का खाप पंचायत, लोग चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में कोई कोर्ट नहीं है और यही डिसाइड करने वाले हैं सारा। तो तभी लिखा था कि उसमें कोई अगर प्रेम करना चाहता है और लगे कि दुनिया मिला नहीं सकती है तो कौन है वो। तो दो प्रेमी हैं, अंबेडकर की प्रतिमा है और मूर्ति के नीचे बैठे हैं दोनों और बात कर रहे हैं। ये नीले कोट वाला किताब को छाती से लगाए क्यों खड़ा है? इश्क के लाजवाब क्षणों में ऐसे सवालों में उलझ जाना उसकी फितरत रही है। इसलिए वो चुप रहा
उसके बालों में उंगलियों को उलझाने लगा। बेचैन होती सांसें जाति विहीन समाज बनाने की अंबेडकर की बातों में घुलने लगी। देखना, यही किताब हमें हमेशा के लिए मिला देगी। देखना, यही किताब हमें हमेशा के लिए मिला देगी। ये कुंडली देख के तो प्रेम कहानियां होती नहीं है ना। प्रेम कहानियां कुंडली बिना देखे होती हैं। तो आप जाति के बंधनों को ना तोड़ें, धर्म के बंधनों को ना तोड़ें, तो प्यार क्या किया फिर तो रेस्तरां में गए, आप खाना खाए, फिर घर लौट आए। कुछ तो बदलेंगे ना। इस संसार को खूबसूरत कौन बनाएगा? जो नौजवान है वो बनाएंगे। जो हमसे ना हो सका, जो हमारी वजह से, हमारी कमियों की वजह से छूट गया, तो पीछे आने वाली पीढ़ी बनाएगी, बना रही है। वो मॉल में काफी सीरियस है। सारे मॉल में जब मैं जाता हूं तो मुझे लग रहा है कि हमारे नौजवान काफी सीरियस हैं। वो सिर्फ टीवी का डिबेट देखकर अपने आप को पारंपरिक नहीं बना रहे हैं, वो मॉडर्न हैं और उन्हें पता है कि अपनी जिंदगी के ख्यालात को अगर आधुनिक बनाना है, अच्छा बनाना है, टीवी छोड़ के कहीं और चलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और लपरेक की कहानियां पसंद आई हैं तो the book, this is published as a book, and which is known as Ishq Mein Shahar Hona. The normal title is Shahar Mein Ishq Hona. That is what we can understand. Shahar Mein Ishq Hona. But Ishq Mein Shahar Hona is like becoming a city. It is something like this. It's a very awkward title. Yeah? Ishq Mein Shahar Hona. That is the title of the collection of this Laprek, Laghu Prem Kathai. Well, so we had a good few things to be noted, like Hina had a very good recitation of the poem. Yeah? So Hina, फिर से मैं अंग्रेजी में बोलने लगा. Yeah? तो हिना ने काफी अच्छी तरीके से इस कविता का पठन किया था. काफी अच्छे आरोह अवरोह भी थे उस उनका पठन में. और फिर एक प्रश्न था, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न था, काफी रसप्रद प्रश्न था क्विज में. क्विज को क्या कहेंगे, प्रश्नावली में. कैहुट की प्रश्नावली में एक था कि राष्ट्रकवि कौन है, भारत के राष्ट्रकवि. मैथिली शरण गुप्त का नाम था और कुछ भी नाम थे. तो वैसे हम जानते हैं कि एक रामधारी सिंह करके भी है जिसका नाम लेते हैं, दिनकर भी है, निराला भी है जिनके नाम लोग लेते हैं. लेकिन ये माने जाते हैं राष्ट्रकवि. भारत में कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि यहाँ पर पोएट लॉरिएट्स बनाए जाए. पश्चिम में है, आपको इंग्लैंड में मिलेंगे आज भी कि पोएट लॉरिएट कौन है. आज के पोएट लॉरिएट साइमन आर्मिटेज करके कवि है जिसने लॉकडाउन नाम की एक कविता लास्ट ईयर लिखी थी. तो भारत में वो परंपरा नहीं रही है. तो लोग माने हैं कि ये कवि जो है वो राष्ट्र की बात करता है, लेकिन फिर भी उनकी बातें ज्यादातर हिंदी प्रदेश की भाषा बातें बन जाती है. पूरा राष्ट्र को लेना, डाउन साउथ अगर बोले हम, पूरे राष्ट्र को तमिल, मलयाली या उस छोरे पे आए हमारे देश जिसको हम 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, मेघालय, नागालैंड, उनकी बातें हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है. बहुत कम ही उनकी बातें आती है. तो सबकी बातें करने वाला कोई कवि राष्ट्र कवि बने, वो भी काफी अभी तक तो नहीं हुआ है भारत में, और ना हो वही अच्छा है. भारत देश ही ऐसा है कि हम छोटे कंट्री नहीं है इंग्लैंड जैसे या फ्रांस या स्पेन जैसे. बहुत बड़ा मुल्क है और काफी विविधता से भरे. हमारा साहित्य, हमारी दंत कथाएं, हमारे धार्मिक रीति रिवाजें, भाषाएं बहुत अलग अलग है, और वो अलग रहे उसमें ही उसकी भलाई है और अच्छाई भी है. तो ये दो बात. या एक खुशबू ने अच्छा वो सुधार किया था कि बहुत ही पॉपुलर पोएम, काफी लोकप्रिय काव्य जो है, लहरों से डरकर वो चींटी अपनी हार नहीं मानती, वो हरिवंश राय बच्चन से नाम से बहुत जानी जाती है, लेकिन वो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई काव्य है.
तो ये अच्छा सुधार था कि ये देखा, परखा कि तो जो भी हम प्रेजेंट करने आए वो देख परख कर आए कि ये यही है या नहीं। इंटरनेट पे बहुत सारी गलत सामग्री भी पड़ी है, गलत तरीके से सामग्री बहुत सारी पड़ी होती है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके वर्गखंड में आ रहा हूं।